and it's also known as the predictive parser. It is a very important. We have a understand, try to understand how this works. Here this is the basic fundamental diagram. Here is the we have a required form stack, and this is the LL1 parsing table and input. So we have a try to understand exactly what is the performance of any kind of a parser. What is the role of any parser? Please tell me, anybody. What is the role of any parser? क्या करता है वो कोई भी parser हो? Language derived. हाँ, language parse tree derived. Right, exactly. कोई भी parser हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है? Parse tree derive करता है. Position कैसे change होगी इसकी? चलो कोई नहीं. Try to. I hope you can earlier write all these things ना. आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको. LLM parsing table construction. अब थोड़ा सा इसको एकदम बेसिक से समझते हैं. अभी ये सब तो लैंग्वेज है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा. पहले मैं फंडामेंटल क्लियर करूंगा आपका, फिर मैं इन सब लैंग्वेज को आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इन सब का क्या मतलब है. चलो समझते हैं इसको. Try to understand what is a. Here we have a. Right, sir. Why we have write this? This is the fundamental. We have a understand the LL1 and try to understand कि कोई भी parser हो उसका रोल क्या होता है and why it is a predictive parser is the work. Everybody just focus here because it is a fundamental. If we can understand the fundamental, they can easily derive all the things very well. A predictive parser. And here we have to understand what it is. Where is the any parsing technique? First of all, you have a remember one thing. Whatever source code we have written, first of all goes to the as a lexical analyzer. What is the role and responsibility of a lexical analyzer? क्या करता है वो? टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. बट ये नेक्स्ट फेज जो हमारा बनता है वो क्या होता है? सिंटैक्स एनालाइजर का. अगर कोई भी पूछे कि सर एनी काइंड ऑफ ए पार्सर वेयर इज सिचुएटेड, तो वो कहाँ पे होता है? सिंटैक्स एनालाइजर में होता है. क्लियर? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वहां से समझेंगे एकदम बेसिक से कि कैसे वो इनपुट देता है, प्रेडिक्टिव पार्सर किस किस तरह से इनपुट लेता है, ठीक है, एंड हाउ इट इज एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट. ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे, एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्क. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी हैव अ ड्रॉ सम डायग्राम सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ए LL1. मेक समथिंग बोल्ड. ठीक है, I think start the recording, okay, so that we have upload this in the portal also, so you can easily get ki how the LL1 parser and LL1 prediction will work. Okay, so here we have a draw one thing, okay, one line, for example, like that. For example, this is the token. This line indicates this is the token. Okay, what is a token? That particular token provided by the, I change the color also. That particular token, for example, provided by the lexical analyzer. Lexical analyzer जो भी ऐसे आउटपुट देता है वो किसके लिए आता है? सिंटैक्स एनालाइजर के एज ए आउटपुट है. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव फाइंड आउट द आईडी. ये एग्जांपल है जस्ट समझने के लिए कि कैसे. फिर मैं जो प्रीवियस एग्जांपल है वी हैव सॉल्व दिस प्रीवियस एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द टोकन. ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं दैट इज ए प्रेडिक्टिव पार्सर. क्या नाम है इनका? प्रेडिक्टिव. Here predictive parser are LL1. You can write anything. Either you have write the LL1. You have write the LL1 parser, or within bracket this one. You have write the LL1 parser or predictive parser. Here we have tried to understand कि ये कहाँ से इनपुट लेता है and how it is a produce the output.
ठीक है, देखिए कोई भी जब पार्सर होता है तो उसको किस किस चीज़ें की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें ग्रामर की भी। हियर वी हैव राइट द ग्रामर, यहाँ पे आप लिख लो ग्रामर, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर जी, you have a write the full grammar, ठीक है, written is the grammar, okay, and we have also required the, अब देखो होता क्या है, एक तो हमें इनपुट डेटा की जरूरत पड़ती है, इनपुट मतलब एज ए टोकन, व्हाट इज है, अब वो टोकन कहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे लेक्सिकल से एनालाइजर होता है, तो यहाँ पे लुक एट बफर में मैं उसको रखता हूँ, बट मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ, तो वो जो बफर या सारी चीजें जनरेट होती है, नंबर्स ऑफ टोकन आता है, वो आता है लेक्सिकल एनालाइजर से, बट दैट पर्टिकुलर टोकन होल्डेड बाय द इनपुट बफर, जो मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाया था, ठीक है। हियर द स्टैक एंड ग्रामर वी हैव एसर्टेड। तो जो एलएलएल पार्सर होता है वो किससे किससे जुड़ा होता है, कहाँ कहाँ से इनपुट लेता है, ये समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक। इट्स टेक द टोकन हियर एंड व्हाटएवर ग्रामर एसोसिएटेड कि कैसे मुझे पास्ट ट्री बिल्डअप करना है, सारी चीजें ये सब करता है, बट इज अ प्रिडिक्टिव पार्सर, बट यहाँ से तो ग्रामर मिल गया और यहाँ से मुझे टोकन मिल गया, बट ये बट कौन सा टोकन कैसे कौन किसको चूज करे, ठीक है, विच प्रोडक्शन इज जो सिलेक्टेड, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, तो विच प्रोडक्शन वी हैव सेलेक्टेड, तो जो डिसीजन वाला पार्ट होता है वो लेता है हमारा पार्सिंग टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे कंपाइलर डिजाइन में जो सबसे लॉजिकल कॉन्सेप्ट माना गया है वो पार्सिंग टेबल को ही माना गया है। प्लीज सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि कैसे ये पार्सिंग टेबल वर्क करता है। Here we have measured the parsing table। अभी हम कौन सा यहाँ पे टेबल बनाना है, एलएलएल पार्सिंग टेबल की बात करते हैं, ठीक है। Here we have mentioned the LL1 पार्सिंग टेबल, ये पार्सिंग टेबल है हमारा, ठीक। अब ये कोई भी पार्सर, एनी पार्सर व्हाट इज ए बेसिक फंडामेंटल, वो टोकन लेगा, ग्रामर लेगा, और जो भी उसका पार्सिंग टेबल बताएगा, पार्सिंग टेबल इज एबल टू टेक द डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ प्रिडिक्टिव पार्सर, प्रिडिक्टिव पार्सर का क्या मतलब है, अपकमिंग स्ट्रिंग किस तरीके से आ रही है, मैं कौन सा प्रोडक्शन ग्रामर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं तो आप समझ पाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, this grammar na, there are several number of production, for example here the e dash, here mention e dash, the e dash derived to epsilon and plus t epsilon, ठीक है, there are two production, so we have which one selected, कौन सा प्रोडक्शन मैं सेलेक्ट करूं, the first one or second one, that particular decision handled by the parsing table। I hope you can understand what is your role of a parsing table, okay। कैसे करता है वो अभी बात करते हैं, उसके लिए एल्गो है, सब कुछ है, पहले उसका फंडामेंटल समझना जरूरी है, ठीक। एल्गोरिथम क्या करता है, टोकन रहता है, ग्रामर होता है, पार्सिंग टेबल होता है, एंड एज ए आउटपुट व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूसेस बाय दिस वन, और एनी पार्सर व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज ए आउटपुट, इट इज ऑलवेज आउटपुट इज एज ए पार्स, एज ए पास ट्री, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से कुछ पास ट्री वो जनरेट करता है, ओके। If it is able to derive this parse tree or syntax tree, then there is no syntax error, okay। तो सारे जितने भी पार्सिंग टेबल होंगे सब में एक चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन होगी, ग्रामर होगा, इनपुट बफर होगा, लुक एट बफर होगा, बट सबका क्या चेंज होगा, पार्सिंग टेबल इज ए डिफरेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पार्सिंग टेबल इट इज ए डिफरेंट, एंड व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पार्सिंग टेबल, ये हमें बताता है कि कौन सा ग्रामर में कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, कैसे हम अपने स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं, तो ये एज ए आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ओके, ठीक। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये काम कैसे करता है एलएलएल पार्सिंग टेबल, एंड व्हाट इज ए स्टेप इन्वॉल्विंग इनटू दैट, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे काम करते हैं, ओके, तो सीखते हैं इसको। तो स्टेप्स आप लिख लीजिए, दैट पर्टिकुलर स्टेप इज ए कॉमन फॉर द ऑल द पार्सिंग टेबल, मैंने सबके लिए कॉमन स्टेप बना दिए हैं, वैसे बुक में देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग भी है, बट एक पहले मैं जनरल सिनेरियो जिससे बच्चों को समझ में आए, मैंने एक कॉमन फिनोमेना बना दिया है कि ये तो लगेगा ही लगेगा, अब उसमें जो चेंजेस हो गए वो हम सीख लेंगे। तो एक पार्सिंग टेबल अगर हम बनाना सीख गए तो वी हैव एबल टू बिल्ड अप द सेवरल ऑल द पार्सिंग टेबल, मैं टॉप डाउन भी सीख जाऊंगा, बॉटम अप भी सीख जाऊंगा, तो बेसिक स्टेप्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये एल्गो नहीं है, एल्गो ऊपर है, बट आपने देखा होगा एल्गो जब हम पढ़ रहे थे तो समझ में कम आ रहा होगा ना, ऐसा था कि नहीं,
नहीं तब ज्यादा आ रहा था सर। ज्यादा आ रहा था। वेरी गुड शिवेंद्र। एंड बाकी लोगों का क्या स्टेटस था? एल्गो पढ़ रहे थे तो आ रहा था समझ में? ये कम आ रहा था, इसीलिए मैं उसको और इजी कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी इस सेमेस्टर में एल्गोरिथम है कि नहीं आपका? है डेटा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यू हैव ऑलरेडी रीड इट? आपने पढ़ा हुआ पहले कि नहीं? इस सेमेस्टर में है कि नहीं है अभी? यस इसमें सर, क्या इस है? सेमेस्टर में। यस सर, इस सेमेस्टर में। कौन कह रहा है याद नहीं है? अभी इस सेमेस्टर में पढ़ना है ना। देखो पहला स्टेप क्या करना है किसी भी ग्रामर का, मैं एलएलएल पार्सिंग टेबल व्हेनेवर वी कंस्ट्रक्ट द एलएलएल पार्सिंग टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिजाइन द आवर फर्स्ट एंड फॉलो। ओके, सेकंड क्या करना है स्टेप जो इंपॉर्टेंट होता है, मुझे पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है। क्या करना होता है? दैट इज ए पार्सिंग टेबल। वी हैव राइट जस्ट ओनली सिंगल वर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट सिंगल वर्ड में पहला क्या करना है, कोई भी ग्रामर दिया है तो क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, उसका दोनों निकालना है, जिसका मुझे एलएलएल पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है? स्टैक इंप्लीमेंटेशन। सारा स्टेप करके हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ओके, जैसे जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ फर्स्ट एंड फॉलो एंड स्टैक एंड पार्ट्स में पूछते हैं कि पार्शियल टेबल, यू कैन कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम दोनों सीखेंगे। क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जाए तो वी कैन इजीली रिस्पॉन्ड दिस वन। एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ओके, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखिए हम दोनों चीजें बताएंगे आपको। वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड अप टू टॉप लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, फंडामेंटल क्लियर होगा, वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी रीच द पार्स। ओके, चलो तो फर्स्ट एंड फॉलो वी हैव ऑलरेडी नो कि हाउ टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट एंड फॉलो। किसी को फर्स्ट एंड फॉलो में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस द फर्स्ट एंड फॉलो। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, जो एग्जांपल मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था, ठीक है, और उसी की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करें। वी हैव हियर ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट रिकर्जन था, लेफ्ट रिकर्जन हमने रिमूव किया और यहाँ पे ई डैश रहेगा। ठीक, इसका फर्स्ट एंड फॉलो सब लोगों ने लिखा हुआ, एवरीबॉडी हैव द फर्स्ट एंड फॉलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया है। वी हैव सॉल्व इट आई थिंक this one, yes, we have already solved this one. If anybody have any doubt, please revision of this one. Okay, it's a very important concept. And remove this one, some extra symbol I have removed it, so you can easily verify. ठीक है, if you anybody have any doubt, please revision of this one. Okay, how the first and follow will calculate this the our. Now we have a move for the another step. देखिए पहला स्टेप क्या है, एलएलएल पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो। ओके, इज इट क्लियर बाय एवरीवन? ये हमने ऑलरेडी सीख चुका है, बार बार फर्स्ट एंड फॉलो ही नहीं बताते रहेंगे ना, अब उसके आगे की बात बतानी होगी, इसीलिए मैं 3-4 न्यूमेरिकल आपको बताया था। वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन। ओके, अब मुझे क्या करना है, पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ टू डिजाइन द कंस्ट्रक्ट द एलएल1 पार्सिंग टेबल। चलो इसको सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे बताएगा इसमें कितने नॉन टर्मिनल है? एनीवन? हाउ मेनी टर्मिनल, हाउ मेनी नॉन टर्मिनल इनटू दैट पर्टिकुलर फर्स्ट एंड फॉलो? प्लीज रिस्पॉन्ड। सर 5 नॉन टर्मिनल है। सर नॉन टर्मिनल 5 है। कौन कौन से बताइएगा थोड़ा। सर ई डैश, टी डैश और एफ। कोई ऐसा स्टूडेंट, एनीबॉडी अनेबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज ए टर्मिनल, व्हाट इज ए नॉन टर्मिनल? हां, एवरीबॉडी हैव ए क्लियर? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? हाउ मेनी वेरिएबल? देखिए टर्मिनल कितने हैं? टर्मिनल 5 है। ओके, एंड वेरिएबल 6। चलो मैं बोल देता हूँ, आपको लिखना चाहो तो लिख लो। टर्मिनल कौन कौन सा है इसमें? देखो प्लस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन,
ID, open bracket, close bracket and dollar. Is it clear? I repeat it once again. टर्मिनल क्या क्या है? टर्मिनल मैं लिख देता हूँ, चलो सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई. अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, दिस द ग्रामर फर्स्ट एंड फॉलो, ओके, और वो बनाएंगे. अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल को. आगे सोल्यूशन की मैं बात करता हूँ. कौन सा सोल्यूशन में बता रहे हैं? हाउ टू कंस्ट्रक्ट है एलएलबल पार्सिंग टेबल. हम ये चीजें लर्न कर रहे हैं, ठीक है. सोल्यूशन में सीखता हूँ क्या है. हाउ मेनी टर्मिनल we have already understand, many people already responded. It's a terminal हमारे पास होगा प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन एंड ID and open bracket, not this one, this one, open bracket and close bracket. Here comma is not a operator. Please focus here. It is a comma used only for the separation purpose. Okay, nobody can confuse that the comma is also operator. Sometimes it is a work as a operator also. Okay, so don't be confused. Here it is a work for only for the separation purpose. कि जितने भी मैं टर्मिनल लिखा हूँ उसको मैं सेपरेट दिखा पाऊँ, इसलिए मैं कॉमा को यूज कर रहा हूँ. कॉमा इज नॉट ए ऑपरेटर हियर. कहाँ से मुझे ये मिल रहा है? क्योंकि बेस्ड ऑन ए ग्रामर. सेकेंड थिंग इज ए डॉलर, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एग्जांपल्स हो जिसमें कॉमा भी हो, हाँ, ऐसे ऑपरेटर काउंट हो रहा है, बट हियर कॉमा इज नॉट ऑपरेटर, इज ए सेपरेट. ओके, दिस वन. वेरिएबल की बात करें तो एवरीबॉडी कैन गॉट द व्हाटएवर रिटन इन द कैपिटल लेटर. एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, मैं एप्सिलॉन को एज ए टर्मिनल कंसीडर नहीं करूंगा. प्लीज बी फोकस. एप्सिलॉन इज नॉट कंसीडर एज ए वेरिएबल, नॉट कंसीडर एज ए टर्मिनल आल्सो. इज इट क्लियर बाय एवरीवन? चलो अब समझते हैं कि कैसे करते हैं इसको. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेबल. क्योंकि हाफ एन आवर है, एक बार अच्छे से इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे. ये 1-2 दिन लगेगा इसको समझाने में. एक बार आप समझ गए फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी. नाउ वी हैव लर्न हाउ वी कैन डिफाइन द टेबल. तो कैसे, हाउ, अब यहाँ पे सीखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ L1 parsing table. पार्सिंग सीखते हैं कैसे बनाते हैं इसको. 2 स्टेप आज सीख लेंगे. यहाँ पे भी टाइम है अपने पास. तो whenever we have a defined to anyone, तो हमें एक काम करना होगा. यहाँ here we have mentioned the non terminal. पहले मैं एक नॉन टर्मिनल लिखूंगा. कैसे नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं उसमें आप बताइए मुझे, मैं लिखता जाता हूँ. Which one is a non terminal? फॉर एग्जाम्पल ग्रामर से मैं लिख रहा हूँ. ई हो गया. यस, चलो मैं थोड़ा स्पेस करते हुए लिखता हूँ जिससे मैं आई थिंक ई हो गया. के बाद E dash we have required, and after that T and T dash. देखो ये फिक्स होगा, ध्यान से समझिएगा. नॉन टर्मिनल रिटन लाइक दैट, ठीक है. ऐसे कॉलम वाइज फॉर्म में लिखेंगे, अपने आप से चेंज नहीं करेंगे. ये फिक्स रूल है, अभी मैं बताऊंगा आपको. और यहाँ पे F होगा. तो जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उसको मैं ऐसे इस साइड लिखूंगा कॉलम वाइज, और जितने भी टर्मिनल होंगे मैं रो वाइज लिखूंगा. चलो हम लिखते हैं इसको. Everybody can try to understand कि how we can define the NT मतलब non terminal हो गया. Define this one. चलो यहाँ पे लर्न करते हैं कि कौन कौन सा है, कौन कौन से हैं. सबसे फर्स्ट क्या है? आईडी हो गया आपका. and after that we have a plus
ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आईडी को ही पहले लिखेंगे, ठीक है, कोई भी यू हैव फॉलो एनी ऑफ ए ऑर्डर, बट यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल आना चाहिए। ये लिखना चाहो तो ये रुक लो, ये रूल है कि वी हैव ए whenever we have created the L1 parsing table, all the terminal written as the row wise and all the non-terminal written in the column wise. नोट करके एक जगह मेंशन कर लो, ये रूल है, ओके। एंड आफ्टर दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, here close bracket, and here mention the dollar, ठीक है। चलो अब इसको लर्न करते हैं कि इस टेबल को फिल कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम यही सीखेंगे कैसे टेबल को फिल करेंगे, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे समझने की जरूरत होगी। अब यहाँ से आप समझ पाएंगे, here we have filled the table with the help of a first and follow, okay? तो सीखते हैं how we can design the first, how to design the follow, what is your rule of this one। देखिए लाइन ऐसे नहीं खींचनी है, वो मुझसे टेढ़ी हो जा रही है, ओके। तो ये समझे कि सर लाइन भी ऐसे खींचनी है क्या? चलो अब देखो मुझे कैसे फिल करना है, इट्स द इम्पोर्टेंट। यू हैव ए मेक सम सेपरेट लाइन ऑफ हियर आल्सो। ठीक है, आप लोगों भी यहाँ पे बना चुके हैं यहाँ तक? एवरीबडी कैन प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टेबल? हाँ, एवरीबडी कैन रीच हियर? Please tell me, everybody can reach here? Yes, sir.
कर लेते हैं। हेलो, यस, एवरीबॉडी इज हियर नाउ। तो नाउ वी हैव हियर वी हैव लर्न कि हाउ वी कैन फिल दिस पर्टिकुलर टेबल। देखो ये टेबल फिल करने के लिए करना क्या होता है, पहले प्रोडक्शन का टेबल बना लेंगे आप। आपने जो अपना फर्स्ट एंड फॉलो किया हुआ है अपने सामने रख लीजिए, इसका दैट पर्टिकुलर ग्रामर का ई डैश टी डैश एंड व्हाट इज ए फर्स्ट ऑफ ए ई, एनीवन, व्हाट इज ए फर्स्ट ऑफ ए ई? सर आईडी और ओपन ब्रैकेट। यस, आईडी एंड ओपन ब्रैकेट। अब ध्यान से इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब भी मैं ये कंस्ट्रक्शन टेबल को फिल करता हूँ तो हमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कहो तो मैं बना दूं क्या अगर आपको जरूरत है तो। एवरीबॉडी हैव द वो फर्स्ट एंड फॉलो, सबके पास फर्स्ट एंड फॉलो है कि किसी के पास नहीं है? अरे होने का मतलब आपने बनाया होगा। अरे ये सबके पास है, चलो मैं बना देता हूँ एक बार। आधे लोग तो बोलेंगे ही नहीं, तो न्यूमेरिकली नहीं समझ आएगा, नहीं होगा तो ठीक है। चलो मैं यही नीचे बनाता हूँ, ठीक है। हियर वी राइट द प्रोडक्शन and after that we write the first and here we write the follow। मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अरे तो रुक जाओ, सर एक अब सेकंड। हो गई। हो गई, वेरी सर गुड। हो गई। सबको शो हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन ही से होगी तो देखोगे कैसे? चलो अब यहाँ पे सीखते हैं। whenever we have calculate the first and follow that is the e, मैं प्रोडक्शन के साथ में लिखता हूँ, सॉरी, e डिराइव टू, हमारे पास था टी टी एस, ओके, ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन। और यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकली हुई थी मैं लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है। here whatever value we have find the open bracket comma id, okay, and what is a follow we have a find out the order close bracket comma and dollar। चलो मैं एक स्पेस करके लिखता हूँ जिससे आप समझ पाएं, ठीक है। एंड ई डैश का जो प्रोडक्शन था वो हमारे पास था एंड प्लस ई डैश एंड ऑब्लिक करके एप्सिलॉन, ओके, ऑब्लिक एप्सिलॉन लिखना होगा, ओके। हियर वी हैव मेंशन द एप्सिलॉन। तो जब भी इसको निकालना, देखो पहला स्टेप इसीलिए हमने आपको क्या बताया, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो, ओके। एंड उसके बाद दिस वन, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख सकते हैं, ये लाइन से ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन प्रिपेयर द सेपरेट लाइन सो दैट यू कैन इजीली सेग्रीगेट की किसके बारे में बात हो रही है और क्या हो रहा है। ओके, एप्सिलॉन। So here we have find out the plus and epsilon. What is the production here? Close bracket and dollar। चलो ये यहाँ पे बन जाएगा तो अच्छा रहेगा बार बार समझने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव राइट द प्रोडक्शन आफ्टर टी। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लाइन से सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। टी की प्रोडक्शन की बात करता हूँ, दो टी डिराइव टू एफ टी डैश। अभी के लिए मेरे साथ में बना ही लो इसको, ठीक है। जिसके पास कॉपी पे नहीं हो पास में उस पेज पे या समथिंग, क्योंकि इसी को लुक करके मुझे आगे बनाना होगा, ओके। So everybody can prepare this one. So here is the close bracket and ID यहाँ पे क्या होगा प्लस and close bracket dollar, सेग्रीगेट भी कर देते हैं, बोथ लाइन आर सेपरेट।
टी डैश हो गया, फिर टी डैश के लिए लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी राइट द टी डैश, टी डैश एरो हो जाएगा यहाँ पे। हियर इज द मल्टीप्लिकेशन एफ टी डैश and after that epsilon. Okay, here is the multiplication operator and epsilon. Here is the plus what is your next last one? E F we write to capital E and after that the ID. What is the value here? Close bracket ID and multiplication. ठीक है, चलो ये तो कॉमन होता है। अब सीखते हैं कि कैसे इसको फिल करते हैं। एक बार ध्यान से समझ लोगे फिर फिल कर लाओगे आप लोग। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट एंड दिस डॉलर। चलो राइट नाउ वी हैव एवरीबॉडी प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड ओनली। ओके, अब देखो कैसे फिल करता है। ये तो फर्स्ट एंड फॉलो बन गया जिसको देखकर हम फिल करते हैं। मुझे इस टेबल को फिल करने के लिए पहले तो क्या है, सबसे मेजर चीज एप्सिलॉन को यहाँ नहीं रखना है। यहाँ पे नॉन टर्मिनल होगा, यहाँ पे सारे टर्मिनल्स लिखे होंगे। ओके, अब देखो मैं देखता हूँ कि ई जो है, ई का फर्स्ट कहाँ पे है। ई का फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। ई का फर्स्ट क्या है, क्लोज ब्रैकेट एंड आईडी। ठीक है, कहाँ से मिला मुझे, ये दिस वन। वी हैव अ सर्किल दिस वन। हाउ वी कैन गेट दिस वन, दिस क्लोज ब्रैकेट एंड आईडी। ओके, तो जो क्लोज ब्रैकेट एंड आईडी है, क्लोज ब्रैकेट दिस वन एंड आईडी, यहाँ पे मैं प्रोडक्शन लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या प्रोडक्शन लिखूंगा कि ये जो आईडी है ये आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है आईडी। देखो आईडी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन बंदा है, यहाँ पे ग्रामर देखो। आईडी के लिए विच वन इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ई का फर्स्ट निकालना है तो टी मिल रहा है। ठीक, अब मैं आ गया टी पे। टी का फर्स्ट क्या हो गया, एफ हो गया। एफ का फर्स्ट क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट एंड दिस आईडी। तो आईडी के लिए कौन जनरेटिंग फंक्शन है, ई। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड और नॉट। आईडी के लिए विच वन इज अ जनरेटिंग फंक्शन, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज एज अ जनरेटिंग। चलो अगर इतना डीपली नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पे तो सिंगल प्रोडक्शन है तो जहां पे भी ओपन ब्रैकेट और आईडी होगी वहां पे हम ये प्रोडक्शन लिख देंगे। इज इट क्लियर? जहां पे भी ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, तो आईडी के केस में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ई। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखेंगे ई derives टी ई डैश टी। सर बट आईडी तो 3 प्रोडक्शंस में आ रहे हैं, ई डेराइव टू टी ई डैश एंड टी टेंस टू एफ टी डैश एंड एफ टेंस टू आईडी। एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट करिए। ये एरो है तो आईडी तो सर जिसमें 3 प्रोडक्शंस में आ रहे हैं ना, जो हमने ये बनाया है सर, या तो फिर जो हमारा प्राइम जो हमें स्टार्टिंग में सिर्फ आईडी। देखो आईडी एक यहाँ पे आईडी आ रहा है, मेन प्रोडक्शन की बात करिए आप। आपको लग रहा है कि आईडी यहाँ भी आ रहा है, आईडी यहाँ भी आ रहा है, यही ना? व्हाट्स योर क्वेश्चन? यस सर। नहीं बेटा, यहाँ से नहीं देखना है, ध्यान से समझो पहले। अभी ये टेबल 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ये वाला। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, हमें ये टेबल फिल करना है। ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम? वंशिका आई थिंक। नो सर, साक्षी। साक्षी, साक्षी ध्यान से समझो।
हमें क्या करना है, ये जो ई का प्रोडक्शन है, ई का प्रोडक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। हियर इट इज ए मेंशन हियर, ई का प्रोडक्शन ये है, देखो दिस वन, ठीक है। ये मुझे फिल करना है, ये मुझे कहाँ फिल करना है, ये मुझे फिल करना है फर्स्ट वाले पे। ई का जो फर्स्ट होगा, ई का फर्स्ट क्या है, दिस क्लोज ब्रैकेट एंड आईडी, ओके। तो हम आ गए यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे है, एक तो क्लोज ब्रैकेट ये है और एक आईडी ये है, तो जो प्रोडक्शन था वहाँ यहाँ पे फिल कर देंगे। इज इट क्लियर? अभी के लिए ये समझो, इज इट क्लियर? वो जो आईडी की बात हो रही है वो कह रहा है कि ई से आईडी पे कब मिल रहा है, इसलिए कौन प्रोडक्शन है जो ई से आईडी पे जा रहा है। इज इट क्लियर? किसी और से नहीं, ई से आईडी पे, ई से ओपन ब्रैकेट पे, मतलब ये जो फर्स्ट मिला हुआ है, इनका कहने का ये मतलब है, ये जो मुझे फर्स्ट मिला हुआ है, तो आईडी तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे सिंगल है तो इतना कोई चेक करने की जरूरत नहीं, बट मल्टीपल प्रोडक्शन होगा तो हमें चेक करने की जरूरत है कि ई विच ऑफ ए प्रोडक्शन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द आईडी, विच प्रोडक्शन ई फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। अभी यहाँ पे सिंगल है तो सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं हुई, सीधा एज इट इज वहाँ पे लिख देंगे। मैं ये लाइन इसलिए बता रहा था कि कहीं मल्टीपल प्रोडक्शन होगा किसी एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे अभी इसी एग्जाम्पल में ही मिलेंगे। ये लाइन सबको समझ में आ गई कि नहीं, पहले ये बता दो। तो यहाँ पे ये लाइन में लिख देंगे। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी में ही, फिर और चीजें समझ में आएंगे। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। चलो अब मुझे ई डैश का निकालना है, तो ई डैश का क्या मिला हुआ है बताओ। ई डैश का प्लस मिला हुआ है, प्लस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वो प्रोडक्शन जो मुझे प्लस दे, ध्यान से समझना, मुझे वो प्रोडक्शन चूज करना है जो मुझे प्लस दे, ठीक है। ई का अगर मैं प्लस वाला चूज करूंगा तभी तो प्लस मिलेगा। ई का जो हमारा प्रोडक्शन बनता है यहाँ पे, ये बनता है प्लस ई डैश, प्लस टी ई डैश। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनती है, अभी बताते हैं क्या। ये तो हो गया, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, क्या लिखा है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ये। हाँ फिर से ये ई डैश वाला, यस सर। यस। देखो देखो अब मुझे क्या करना है, ई डैश में देखो यहाँ पे एक प्रोडक्शन था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ध्यान से समझिए। यस दैट इज ए सिंगल प्रोडक्शन, तो सिंगल प्रोडक्शन हम कहाँ कहाँ पे लिखेंगे, दैट ओपन ब्रैकेट एंड आईडी। इज इट क्लियर? हमने लिख दिया, मुझे कोई डाउट नहीं है, ये वाला प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ओके। अब मुझे ई डैश का लिखना है। ई डैश में देखिए दो प्रोडक्शन है, ओके, और इसको लिखना कहाँ पे है, एक प्लस पे लिखना है और एक एप्सिलॉन पे लिखना है। तो अभी एप्सिलॉन तो ऊपर कहीं लिखा ही नहीं गया है, तो उसकी बात छोड़ देते हैं, अभी हम देखते हैं प्लस। अब प्लस, ये हमारे पास दो प्रोडक्शन है, दिस वन एंड दिस वन। प्लस कौन दे रहा है, ये दे रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट में फर्स्ट ये आ रहा है, तो ये प्लस अगर मुझे प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना है तो मुझे ये फर्स्ट वाला चूज करना होगा। दैट्स व्हाई वी हैव ए मेंशन हियर, इसलिए ई डैश के फर्स्ट में हमने ये मेंशन कर दिया। समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन तो कहीं पे दिया ही नहीं है। तो जब भी फर्स्ट में एप्सिलॉन आएगा, लिसन वेरी केयरफुली, व्हेनेवर एप्सिलॉन कम इनटू द फर्स्ट, तो हम उसका फॉलो देखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी फर्स्ट वाले में एप्सिलॉन आएगा तो एप्सिलॉन ऊपर तो कहीं है ही नहीं जो मैं लिख सकता हूँ, तो हम इसका फॉलो देखने लगेंगे। फॉलो में क्या है, क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। तो क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर में हम क्या मेंशन करेंगे, ई डैश डिराइव टू एप्सिलॉन, ठीक है। फिर से मैं करके दिखाता हूँ उसको। फिर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर में यहाँ पे क्या मेंशन होगा, ई डैश चलो बाकी सब लोग फिल करो इसको अपने से, हाँ बाकी सब करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये एज ए असाइनमेंट भी है, अभी आप करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में भी पूरा इसको फिर से अच्छे से करूंगा। अभी रूल मैंने बता दिए और दो एग्जाम्पल्स में बता दिए, बाकी सबके लिए आप फिल करिए, फिर मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा और मैचिंग करेंगे कौन सा मैच कर रहा है। सिर्फ सिंपल सा रूल क्या है, एक बार फिर से समझते हैं, यहीं तक समझते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट में जिसमें कोई एप्सिलॉन नहीं है वो प्रोडक्शन, देखो कैसे करना है इसको। ई जो भी प्रोडक्शन दे रहा है, पहले मैं ई का फर्स्ट देखूंगा, फर्स्ट की लोकेशन मुझे ये बताता है कि ये पर्टिकुलर ग्रामर कहाँ पे लिखना है। इज इट क्लियर?
फर्स्ट की लोकेशन मुझे ये बताता है, जो भी टर्मिनल है उसका, कि मुझे ये पर्टिकुलर ग्रामर कहाँ पे लिखना है। मे बी जो ई का प्रोडक्शन है वो मोर देन वन प्रोडक्शन दे रहा हो, तो मुझे ये देखना है कि वो टर्मिनल जहाँ पे मुझे जाना है वो कौन सा प्रोडक्शन देता है। जो प्रोडक्शन पर्टिकुलर उस टर्मिनल को जाने के लिए मुझे प्रोडक्शन देता है, सिर्फ वही प्रोडक्शन यहाँ पे लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट में हमें क्या मिल गया था, पहला वाला क्या था, तो मुझे ओपन ब्रैकेट एंड आईडी मिल गया था। तो हमने ये कहाँ से मिला मुझे, ओपन ब्रैकेट और आईडी, फर्स्ट ऑफ ए ई। इस दो लोकेशन पे सिंगल प्रोडक्शन था, तो मैं सीधे सीधे उसको लिख दिया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ ई डैश की। तो नीचे देखो ई डैश क्या प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, ई डैश डिराइव कर रहा है प्लस वाला और ये एप्सिलॉन वाला। तो प्लस वाला करेगा ही, एप्सिलॉन वाले में कहीं कुछ है ही नहीं ऊपर। जब भी एप्सिलॉन आता है तो हम क्या निकालते हैं, उसका फॉलो ले लेते हैं। तो फॉलो की लोकेशन पे हमने क्या लिख दिया, ई डैश डिराइव टू ई। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? Yes. Please ask if you have any questions. And I'm stop the recording. You can ask any question if you have.